وہ باتیں جو خدا نے آج ہماری زندگی کے لیے رکھی ہیں، ہم سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں خدا کی زندہ پاک کلام میں سے متی کی انجیل 24واں باب اور 37ویں آیت ہے۔ جی بھائی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ سو خدا کی کلام مقدس میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 36واں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جی، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے۔ ہاں جی، یہ خدا یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ جانتا ہے۔ اور 37ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا۔ ہاں جی، ایک نشانی ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا کب ہوگا۔ آپ کو پتا ہے ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح آ چکے ہیں۔ کب آئے وہ؟ کب آئے؟ کب آئے وہ؟ پہلی دفعہ کب آئے ہیں؟ سب کہیں چرنی میں جب ان کو رکھا گیا تو اس وقت ان کی پہلی آمد تھی۔ ہاللیلویا۔ اس وقت وہ آئے تھے نجات دینے۔ کیا آئے تھے؟ کیا دینے آئے تھے؟ نجات کس سے؟ گناہوں سے۔ گناہوں سے نجات دینے کے لیے۔ اب خداوند یسوع مسیح پھر آنے والے ہیں۔ ہم آپ کو جو تیار کر رہے ہیں یا کلیسیا جو تیار ہو رہی ہے یا کلیسیا میں جو منادی ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کا آپ نے چند ایک مہینہ پہلے جنم دن منایا، سیلیبریٹ کیا، وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ لیکن پہلے جب وہ آیا تو وہ نجات دینے کے لیے آیا، اب دوسری دفعہ وہ آئے گا اور دوسری دفعہ بھی کچھ وہ کرنے آ رہا ہے۔ اور وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کو لینے آ رہا ہے جنہوں نے اس نجات کو جس کو وہ دینے آیا تھا حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ خدا یسوع مسیح کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیا تھا نجات دینے کے لیے اور اب دوبارہ وہ کس لیے آ رہا ہے؟ نجات یافتہ لوگوں کو لینے کے لیے۔ ہوگی سنا نا، ہوا سے اڑ جانا ہے یسوع نے جدوں آنا ہے، تو ہوا میں اسی وقت اڑا جائے گا جب آپ نجات یافتہ ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ تو کہتا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا۔ ہاں جی، اور ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے ہاں جی، ایک ریفرنس ضرور دیا گیا۔ کہتا ہے کوئی نہیں جانتا اس گھڑی کو، اس وقت کو، اس دن کو، اس مہینے کو، کہ کس مہینے، کس دن، کس وقت، کس لمحے میں خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے۔ لیکن ایک ریفرنس ضرور دے دیا گیا، نشانی کے طور پر بتایا ضرور گیا کہ تاکہ ہم اس سے تھوڑا آئیڈیا لگا لیں۔ کہتا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا۔ حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی جب ابن آدم آنے والا ہوگا تو اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا ہوگا یا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جس طرح طوفان، اور پھر وہ بتاتا ہے، کہتا ہے ہوا کیا تھا اس وقت؟ کہتا ہے کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے۔ ہاں جی، جب تک طوفان نہیں آیا تھا، نوح کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ متی کی انجیل لکھنے والا خداوند یسوع مسیح کا رسول شاگرد لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جب تک طوفان نہیں آیا تھا اور کشتی بن رہی تھی اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیزی تھے، مصروف تھے اپنے اچھے اچھے کھانوں کو کھانے میں، شادیاں بیاہ کرنے میں اور اپنے بہت سارے کام کرنے میں مصروف تھے، بیاہ شادی کرتے تھے۔ اور کیا ہوا؟ اس دن تک کہ نوح کشتی میں اس دن تک وہ سب لوگ یہی کرتے رہے جب تک نوح کشتی میں داخل نہیں ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ نوح کشتی کس لیے بنا رہا تھا؟ پانی سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے۔ لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے یہ نہیں سنا، لوگوں نے اس کی منادی پر وہ ساتھ ساتھ منادی بھی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ کشتی بھی بنا رہا تھا اس وقت تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوتا لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے۔ ہاللیلویا۔ کہتا جب ابن آدم کے آنے کا وقت ہوگا، یعنی خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت ہوگا، اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ لوگ بتا رہے ہوں گے بھائی یسوع آنے والا، تیاری کر لو، یسوع آنے والا، تیاری کر لو، یسوع آنے والا ہے، تیاری کر لو۔
तुम्हारी तैयारी दे देता है। हालेलुया। ये बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा। आगे क्या कहते हैं जी? और जब तक तूफान आकर उन हाँ जी, और हुआ ये कि नूह जो है, नूह कश्ती में तूफान आने से, बारिश आने से पहले ही 7 दिन खुदा ने उसको कश्ती में बुला लिया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई, बारिश शुरू नहीं हुई, कश्ती बन गई। और कश्ती को बनाने के बाद नूह को खुदा ने पहले ही बोला कि तू कश्ती के अंदर आ जा, कश्ती के अंदर आ जा। जी आगे, जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया। हाँ जी, उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। इसी तरह जिस तरह उनको खबर ना हुई, जो लोग आज के दिन खुदा यीशु मसीह के आने की तैयारी नहीं कर रहे, उनके साथ भी यही होने वाला है। वो समझ रहे हैं एवं ही पादरी हमें जोर ला रहे हैं। नो, ऐसे नहीं है। पादरी ऐसे हमें बताते रहते हैं, पास्टर चर्चेस में, टीवी में, जगह जगह कन्वेंशन में बताया जा रहा है, तौबा कर लो, खुदा की बादशाही नजदीक है, यानी खुदा यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे इतने जाना, ऐसे उठे जाना, क्या करना, साढ़ा कम लोग जगह। यही बात यहाँ पर बताई गई। नूह भी जब मनादी कर रहा था तो उसको भी लोग ऐसे ही कह देते। आगे सर पढ़िए थोड़ा। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा, 100% होगा। हालेलुया। 100% खुदावंद यीशु मसीह, अगर पहले कहा गया था कि कुंवारी से एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा, वो नजात देगा, वो काम हो गया, वो भी इसी बाइबल में लिखा है। अब कहा जा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे बादलों पर, तो ये भी होने वाला है और होगा। जी आगे, उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे। उस वक्त की बात हो रही है कि खेत में 2 आदमी होंगे, 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे। कुछ भी वो समझ रहे हो, वो बीज बो रहे हो, वो गोडी कर रहे हो, वो कुछ भी कर रहे हो, कहते हैं 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। हाँ जी, एक ले लिया जाएगा, यानी एक खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पर चला जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दूसरा मुकाबला करेगा। आगे, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी। हाँ जी, चक्की पीसी जाती थी उस वक्त, जब घर में दाने डालकर आटा बनाया जाता था। तो कहते हैं उस वक्त क्या होगा, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, और एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और 42वीं आयत पढ़िए भाई। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद इस दिन आएगा। जागते रहना है। कोई पता नहीं होने आज, कोई पता नहीं थोड़ी देर बाद आ जाए, कोई पता नहीं साल बाद आवे। हालेलुया। लेकिन नहीं होना जरूर है, कंफर्म है। तो लिया केड़ा जाएगा तो छटिया केड़ा जाए। हालेलुया। आज जैसे ऐसा समझो कि कौन नीचे रह जाएगा और कौन ऊपर। दुनिया खत्म नहीं होगी, याद रखें। ये घर ऐसे रहेंगे, ऐसे ही ना भाई, ये घर रहेंगे, ये बिल्डिंग रहेंगी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। लेकिन कुछ लोग उस वक्त टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज और पता नहीं क्या क्या चल रहा हो, सोशल मीडिया पर, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन मैं समझता हूँ हो सकता है किसी को सुनने की फुर्सत ही ना हो, क्योंकि हर घर में, हर मोहल्ला में, हर चर्च में, हर जगह से, हर मुल्क से, दुनिया के एक कोने से लोग उठाए जाएंगे और जो नीचे रह जाएंगे वो देख रहे होंगे कि क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। अब छोड़ दिया कौन जाएगा और ले लिया कौन जाएगा, इसको हम आपस करेंगे आज। हालेलुया। इसको हम देखेंगे आज। अपने गौर से इन बातों को सुनना। खुदा की किताब 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे कि असल में नूह के दिनों में क्या हुआ। पहले हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। जी पढ़िए भाई। नामिया 6ठे बाब की 5वीं आयत। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की हाँ जी, असल में हुआ ये था कि नूह के वक्त खुदावंद ने जब गौर किया, नजर की, तो क्या देखा कि जमीन पर क्या हो गया है, जमीन पर बदी बढ़ गई, वो बदी बहुत बढ़ गई। हाँ जी, इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। आगे, और उसके दिल के तसव्वुर, हाँ जी, इंसान की बात हो रही है कि उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। खुदा ने ये नतीजा अखज़ किया। नूह के दिनों की बात हो रही है। जब लिखा है ना कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में हुआ था। तो हम नूह के दिनों को देख रहे हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। नूह के दिनों में इंसान की बदी बहुत बढ़ गई थी और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल से वो बुरे हो गए थे। सदा
आगे तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने तब से खुदावंद जब बदी इंसान ने बहुत बढ़ा दी या इंसान की जिंदगी में बदी बहुत बढ़ गई तो खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ, शर्मिंदा हुआ, गम किया। और दिल में गम मैं किया। कहना इंसान एक ऐसी चीज खुदा ने बना ली है कि जिसे तो आप भी परेशान हो गए कि मैं केड़ी चीज बनाऊं बेटा। इसका मतलब ये मैंने आपको पंजाबी करके बताई ताकि आपको पता चले कि खुदावंद क्या हुआ, मलूल हुआ और दिल में गम किया। दिल में गम किया किसने? खुदा ने। क्यों? कि मैं केड़े बंदे पैदा कर इंसान की किससे मखलूक दी पैदाइश दो या पैदावार दो या पैदा हो तो खुदा ने गम नहीं किया। एक ही कौन? मैं तो तुझे इंसान। आगे सर। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया हाँ कहता मैं इंसान को जिसे किसने पैदा किया? मैंने पैदा किया है रोए जमीन पर से खुदा। जब हम बदी में बढ़ जाते हैं, जब हम खुदा से दूर जाने में हद से गुजर जाते हैं और बदी खुदा की हजूरी में पहुंच जाती है तो फिर खुदा भी कुछ ना कुछ करने पर जो है वो मजबूर हो जाता है या वो स्टेप लेता है या वो एक्शन लेता है। खुदा ने एक्शन लिया और उसने कहा कि मैं इस इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रोए जमीन पर से मिटा दूंगा और इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं इनके बनाने से उनको बनाने से क्या हुआ? मलूल हुआ। एक इंसान के चक्कर दे विच परिंदे इंसान को बनाने से खुदा जो है वो शर्मिंदा हुआ है, मलूल हुआ है। लेकिन फिर भी एक शख्स, एक बंदा ऐसा है जिसके बारे में खुदा कहता है कि नूह जो है वो खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वही जाएंगे जो उसकी नजर में मकबूल होंगे। जिस तरह मकबूल होने की वजह से खुदा ने नूह के लिए कश्ती बनवाई और खुदा ने उसको बचाने के लिए, ताकि मैं प्लान कर चुका हूं कि मैं सारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन खुदा इंसाफ करने वाला खुदा, उसने कहा नूह मेरी नजर में मकबूल है तो इसको मैं बचाऊंगा, किसी भी तरीके से बचाऊं। और खुदा ने प्लान तैयार किया, खुदा ने उसको कश्ती बनाने के लिए कहा। हालेलुया। ये हुआ था नूह के दिनों में और आज भी यही हाल है। आज भी जमीन पर बदी बढ़ चुकी है और खुदा ने अपना फैसला सुना दिया है, सुना चुका है और पहले से बता दिया है। जैसे नूह पहले से बताता जाएगा भाई तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। ये जो मैं कश्ती बना रहा हूँ किसी समुद्र के लिए, किसी दरिया के लिए, किसी नदी में चलाने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि इसके 3 दर्जे हैं, 3 फ्लोर है। ये तो बहुत बड़ा शिप है, इसमें आ जाओ, इसमें जो आ जाएगा वो बच जाएगा। लेकिन लोगों को ये बेवकूफी लग रहा। लोग कह रहे थे ना इधर आगे समुद्र है, ना दरिया है, ना पानी है, बाबा नूह एडा वड्डा जहाज ना हाली बैठ गया और कहते हैं कि चलो किते बच जाओगे, पता नहीं कदों तूफान आना है ते कदों इस कश्ती से असीं बढ़ के बचांगे। नूह तकरीबन 120 साल लोगों को बताता है, लेकिन एक दिन आया, खुदा ने जो कहा था वो पूरा हुआ और तूफान आ गया और सबको बहा ले गया, जो मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा। हालेलुया। पहला पत्रस 2 बाब 4 आयत। क्यों ये हुआ? नूह के दिनों में ये क्यों हुआ? पहली बात तो ये बदी बढ़ गई और खुदा ने ये स्टेप क्यों लिया? पहला पत्रस 2 बाब 4 आयत से पढ़ें जी भाई। पहला पत्रस का खत 2 बाब 4 आयत जी। क्योंकि सुनाची किताब मुकद्दस में आया है कि पहला पत्रस 2 बाब 4 आयत उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा पहला पत्रस 2 बाब उसकी 4 आयत यही अच्छा पढ़े थोड़ा सा पढ़े। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं।
चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून, पहला पत्रस तीसरा बाब और उसकी सॉरी गलत रेफरेंस मैंने बताया आपको 18वीं आयत। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ना रास्तों के लिए गुनाह के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हम खुदा के पास पहुंचाए जाएं। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, हाँ जी, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, नाम यीशु मसीह की बात हो रही है जी। लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। आगे इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों की मुनादी की। हाँ जी, इसी में उसने जाकर कैदी रूहों की मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थे, जो उस अगले जमाना में क्या थे? नाफरमान थे। और अगली आयत, जब खुदा नूह के वक्त में, जब खुदा किसके वक्त में? जब खुदा किसके वक्त में? नूह के वक्त में क्या कर रहा था? तहम्मुल करके ठहरा रहा आज था। नूह के वक्त में जब कश्ती बन रही थी ना, तो खुदा तो तहम्मुल करके ठहरा हुआ था। खुदा ने गुस्सा ते बड़ा सी, पर उन्हें अपने आप ਨੂੰ रोकिया सी तूफान ले आने तो। क्यों? क्योंकि उन्हें नूह को बचाना सी। हालेलुया। खुदा क्या कर रहा था? तहम्मुल करके ठहरा हुआ था। नूह के वक्त में खुदा तहम्मुल करके, सब्र करके, हलीमी के साथ ठहरा हुआ था कि मैं इन सब लोगों के साथ नूह को नहीं मार सकता। जब तक कश्ती नहीं बनती अबदी करते रहे, जब तक कश्ती नहीं बन जाती, जब तक मैं नूह को बचाने का इंतजाम नहीं कर देता, और उस वक्त तक उनके लिए मौका था कि वो नूह की बात सुनते। हालेलुया। कहते हैं खुदा क्या ठहरा रहा? तहम्मुल करके आगे ठहरा रहा था। हाँ जी। और वो कश्ती तैयार हो रही थी, और वो कश्ती क्या हो रही थी? वो कश्ती तैयार हो रही थी, और खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ था। आगे, जिस पर सवार होकर उस कश्ती पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी कितने आदमी? 8 जाने। सब कहें थोड़े से। कितने? थोड़े से। कितने? थोड़े से। थोड़े से। पूरी दुनिया दे विचों थोड़े से, ते पूरी दुनिया दे विचों हुण भी थोड़े जे चुके जाने। हालेलुया। अब मैंने और आपने देखना ये है कि हम कहाँ हैं? हम नीचे रहने वालों में हैं या ऊपर जाने वालों में? गड़बड़ है ना? तो दुनिया लगी है अपने कमाच, लगी भी ना। जो ये सारा सेटअप लेकर चल रहे होते हैं या जो कर रहे होते हैं, उनको लोग समझते हैं बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है। एक दिन आएगा ये बेवकूफी आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है सब। जब वो आपके सामने से उड़ जाएगा और आप नीचे रह जाएंगे, और नीचे जो रह जाएंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल का वक्त होगा। उसको कहते हैं मुसीबत का दौर। अभी कौन सा दौर है? कौन सा दौर है? फजल का दौर है ना। जब कलीसिया उठाई जाएगी उस वक्त क्या हो जाएगा? मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा। सही है। शरीयत का दौर खत्म हो गई, आपको पढ़ाया जाएगा पूरे अदवार के बाइबल का पूरे अदवार में लिखी गई। हालेलुया। तो मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा। फेवर, ये फजल कहते हैं फेवर को। फेवर उस वक्त तक है। तो तहम्मुल भी उसी मीनिंग में जाता है। खुदा उनको फेवर दे रहा था कि कश्ती बन रही है, चलो कोई बात नहीं, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। कश्ती बनने तक खुदा आपका इंतजार करता रहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज के दौर को भी फजल का दौर कहा जाता है, फेवर का दौर कहा जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग के साथ कुछ यही करके देंगे, कोई का नहीं, फजल का दौर है। फजल का दौर पहले दौर से ज्यादा मुश्किल। हालेलुया। पढ़े सर क्या होगा? थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। 8 जाने पानी के वसीला से बची। किसके वसीला से? पानी के वसीला। सब कहें किसके वसीला से? पानी के वसीला। किसके वसीला से? पानी के वसीला से बची। इसको यहीं पर छोड़ दें, इसको हम बाद में आगे पढ़ते हैं। एक रेफरेंस और पढ़ें, दूसरा पत्रस, वो दोबारा निकालेंगे कल। दूसरा पत्रस, हाँ जी, और उसका दूसरा बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ने शुरू करें। इसको दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे दूसरे रेफरेंस को। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में नूह जो है, नूह के साथ जो दूसरे लोग थे उनके साथ ये क्यों हुआ? जी आगे। उसी के यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के। पत्रस दूसरा बाब कहाँ से पढ़े आप? 4थी आयत।
क्योंकि जब खुदा ने क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को किनको फरिश्तों को गुनाह करने वाले फरिश्तों को कहते हैं गलती होगी, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ, कहते हैं ना, गलत है। फरिश्तों ने सबसे पहला गुनाह किया। पहला गुनाह कहाँ पर हुआ? आदम और हवा ने नहीं किया। पहला गुनाह जमीन पर नहीं हुआ, आसमान पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये सीख लेंगे, बाइबल स्टडी की बात है। पहला गुनाह कहाँ पर हुआ है? आसमान पर। किधर आगे? खुदा दे आगे। ते कीता कि ना? कीता कि ना? हम ये नहीं करना, मैं को फरिश्ता, मेरे को गलती नहीं हो सकती। तो फरिश्तियां ने पहली गलती की थी, हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने क्या किया? गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा। खुदा ने फरिश्तियां नहीं छड़ा, इतना गुनाह किया। हालेलुया। गौर करें इस बात पर। खुदा ने, फरिश्ते कौन है? फरिश्ते हर वक्त खुदा के सामने रहते हैं, हर वक्त खुदा के हुक्म की तामीर करने के लिए खड़े रहते हैं कि कब खुदा हमें हुक्म करे और कब हम चल पड़े किसी काम को करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने इनको भी नहीं छोड़ा। तुसी कौन? हालेलुया। समझ आ रही है? गुनाह कितनी खतरनाक चीज है कि ये खुदा की हजूरी से हमें निकाल देती है, और उन्हीं फरिश्तों को फिर आसमान से नीचे गिरा दिया गया, उसी को हम इब्लीस कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। बल्कि जहन्नुम में भेजकर, किसमें भेजकर? जहन्नुम में। किनको? फरिश्तों फरिश्तों को। फरिश्तों को। सबसे पहले जहन्नम में जाने वाले कौन है? भाई जी पता नहीं, आज जाना ना जाना, लेकिन पहला कौन गए थे? गुनाह भी पहले ना कीता ना, यस, तो फिर जन्म भी पहले जाने। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कहते हैं पहले क्या किया? बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीकी गारों में डाल दिया। तारीक गारों में, अंधेरे वाली जगह पर उनको डाल दिया गया है। कुछ फरिश्ते इतने खतरनाक हैं तो उनको खुदा ने पहले से ही तारीख, इसका मतलब है, मुझे ऐसा लगा इसको पढ़ के कि शायद जहन्नम के अंदर भी डिविजन्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं। हो सकता है कहाँ में लिखा हुआ है ना कि जहन्नम में भेजकर तरीक़ार में डाल दिया, तो इसका मतलब है जहन्नम में सिर्फ आग ही नहीं बल्कि तरीक़ार भी हो सकते हैं, बल्कि जिसमें उन्होंने, खुदा ने उनको डाल दिया। क्यों डाल दिया? ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। अदालत के दिन तक वो फरिश्ते भी हिरासत में हैं। जब अदालत होगी तो उनको भी उसी जगह पर डाला जाएगा जिस जगह के वो लायक हैं या काबिल हैं, ये जो कुछ उन्होंने किया। आगे। और ना पहली दुनिया को कहता फरिश्तियां नहीं छड़िया तो ना पहली दुनिया को। पहली दुनिया कौन थी? पहली दुनिया नूह के दौर की दुनिया। हम नूह के बाद के दौर के, सही है। नूह के आगे 3 बेटे थे, उनकी आगे बीवियां थी, उनमें से हम निकले। लेकिन नूह से पहले जितने भी लोग थे वो सब खत्म हो गए, तो उसको खुदा ने कहा वो पहली दुनिया, यानी हम दूसरी दुनिया के लोग। नूह के बाद की और नूह के पहले की दुनिया खत्म हो गई, और नूह के बाद दोबारा दुनिया आबाद हुई। हम सब नूह के अंदर से निकले, हम तीनों बेटों के अंदर से। कौन से बेटे से हैं ये बात भी कभी सीखेंगे। ठीक है। कहता है ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर। पहली दुनिया कौन सी थी? बेदीन दुनिया पर क्या किया? तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को। हाँ, तूफान उसने भेजा है जरूर, लेकिन एक शख्स ऐसा है रास्तबाजी की जो मनादी कर रहा था। आज जो खादम मनादी कर रहे हैं वो भी यही मनादी कर रहे हैं, रास्तबाजी की मनादी कर रहे हैं। कहते हैं रास्तबाजी की मनादी करने वाले नूह को माँ 7 आदमियों के बचा लिया। माँ का मतलब है 7, यानी उसके नूह के 7 लोग और थे, तो नूह मिला के कितने हो गए? 8। नूह की बीवी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 उनकी आगे बीवी। तो कितने लोग बचे थे? पहली दुनिया में से कितने लोग बचे? 8। ये भी सवाल है, पहली दुनिया में से कितने लोग बचे? 8 लोग बचे। अब अगली जो दूसरी दुनिया है उसके अंदर हम मौजूद है। हालेलुया। और अब तूफान नहीं आएगा, अब क्या होगा? अब खुदा यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को ले जाएगा। अब वही करें, रेफरेंस दोबारा पढ़ें इसको, उसकी किस बात? हाँ जी, जहाँ से छोड़ा था। और उसी पानी का मुशाबा भी जिस वक्त नूह की कश्ती उठाई गई, तो नूह की कश्ती को कौन उठा रहा था? पानी उठा रहा था ना। यस। पानी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वो कश्ती ऊपर उठती गई। उस कश्ती में ना तो कोई इंजन था, ना तो कोई चक्कू था, ना कोई चलाना था, ना कोई चलाने वाला था।
اس کو خدا نے آٹومیٹکلی خود ہی بنایا، ایک ہی دروازہ ایک ہی روشن دان، بہت بڑی کشتی تھی، 3 فلور کی کشتی اور ایک ہی روشن دان تھا اور ایک ہی دروازہ تھا بس. اور خدا نے دروازہ بھی جب وہ اندر چلے گئے تو خدا نے دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا. کہاں سے بند کر دیا؟ باہر سے. باہر سے بند کر دیتا کہ نوح کسی کی آواز سن کے، کیونکہ کشتی اتنی بڑی تھی، چھوٹی موٹی بارش کے اندر تو نہیں اٹھائی گئی ہوگی نا، تھوڑی بہت بارش میں تو کشتی نہیں چکی جان لگی. 3 فلور کی کشتی ہے، لکڑی لگی آخر وہ جس درجے نے، پھر وہ خالی کشتی نہیں گئی، وہ جانور نے بہت سارے کمپلیٹ زو، دنیا کا کمپلیٹ زو کہیں بھی نہیں ہے، ایک ہی تھا، نوح کی کشتی. نوح کی کشتی میں دنیا کا ہر جاندار، ہر پرندہ، ہر ایک قسم نسل، سب کچھ اس کے اندر. سانپ بھی ہوگا اس کے اندر، یس سانپ بھی ہاتھی بھی ہوتے سے، شیر بھی ہوتے سے، باگڑ بلا بھی ہوتے سے، ریچھ بھی ہوتے سے، باندر بھی ہوتے سے، باندر تے باندری، ریچھ تے ریچھلی، شیر تے شیرنی، چڑیا تے چڑیا، سارے کان کوا کبوتر سارے، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے جتنے جانور آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود تھے. ہاللیلویہ. ایک سوال اٹھ رہا ہے سر، کیا اس کے اندر آبی جانور بھی تھے؟ میرے خیال وہ نہیں ہونے، کیونکہ آبی جانور پانی میں گرے تھے. پوچھا گے اسے بڑی ہاللیلویہ. سوال جو نکل آیا تو پوچھا گے. ہاللیلویہ. تو پورا چڑیا گھر کون تھا؟ نوح کی کشتی میں پورا چڑیا گھر اندر موجود تھا. باہر لوگ ٹکرا مارتے ہونے نے کشتی دے نال، اور نوح بابا کھول انہاں دے اودے منڈے دے سورے آئے ہونے نے لاگے چلے کہ جڑے نوح ساڈا تے واقعی بڑا، ساڈے بھی دروازہ کھولے گا، ساڈے بھی کھول لے گا. پر نوح بیچارہ کی کرے، نوح تو پتہ ہی نہیں اندر کی باہر کی ہون دیا. نوح چپ کر کے ڈنگراں نوں پانی ڈال رہا ہونا، پٹھے پا رہا ہونا، پر انہاں نوں خوراک بھی تے دینی سی نا جڑے اندر جانور سن. انہاں دا جنہ کتنا وزن ہوئے گا اس کشتی دا، کہ وہ کشتی جڑی وہ ایویں تے نہیں چکی گئی نا، پانی ٹیرو ٹیر پانی سی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی. یہ جب گھر بنے ہیں تو کتنی دیر بارش ہوئی تھی؟ 8 بیل نہیں سی، 2 نہیں سی. تو وہ 40 دن 40، میں صرف آپ کو یہ ساری باتیں بتا کے آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ جس وقت، اس وقت جب نوح کے دنوں میں یہ ہوگا، اس وقت بھی جب ہوگا تو بھیانک ایک نظام ملے گا. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کشتی کے اندر والے ہیں یا باہر والے ہیں؟ باہر تو باہر ٹکنا مار رہا ہوں، نہیں کھلے گا. نوح چپ کر کے اندر اپنے کما چ لگا. میں نہ کیا بہوਆਂ بڑیاں چنگیاں رام نے اپنے سونے کی گل بڑ من کے اندر چلے گئی. نہیں تو کہہ جا تھی جاؤ، میں تے اپنی امی کے گھر چلے، تھی کشتی چ وڑ جاؤ، میں امی گھر چلے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جتنے شوہر جا رہے ہیں اتنے ہی جانا. ادو میں اپنی یار انہوں نے سورے نہیں سی نا بھائی، نوح دے کڑم کو نہیں سن. 3 بیاہ انہیں کیتے، منڈے 3 بیاہ نا، تے کنے کڑم ہوئے؟ کاکا کنے کڑم ہوئے؟ کڑم سمجھنا تسی بھی تے کڑم ہوئے نا. جن کو رشتہ دیا ہوتا ہے وہ کڑم ہوتے ہیں. آپ کے امی ابو کے وہ کڑم ہیں. سسرال ہے، آپ کی سسٹر کے سسرال ہے یا آپ کے سسرال ہے، تو ان کے سسرال میں بھی تو آگے کتنے رشتے ہوتے ہیں، وہ سارے رشتے ہوں گے. بہت مطلب میں آپ کو تھوڑا سا اس سچویشن میں لے کر جا رہا ہوں. لیکن انہوں نے خدا کے کلام کی بات کو سن کر کہ ہمارے ابے نے یہ کلام سنا ہے، سمجھا ہے، کشتی بنائی ہے، اب اس میں ہم نے داخل ہونا ہی ہے. اور وہ داخل ہو گئے اور وہ بچ گئے، اور انہی میں سے آج ہم ہیں. ہاللیلویہ. اسی میں سے نام یسوع مسیح کا نام، اسی میں سے آج ہمارے باپ دادا اور سارے ہم نکلے. اگر وہ تو وہ کلام نہ مان دے تو جی کرتا سی بھی نہ دے. ہاللیلویہ. کہ انہوں نے کلام منیا تے اسی مجبور اسی اج کلام کو مان کے خداوند کی حضوری چ آواں گے. اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس پانی کے وسیلہ سے وہ بچے. تو آج ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ اب شروع ہونے لگی بات. ہاں جی جلدی سے پڑھیے بھائی. اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی اسی پانی کا مشابہ جس نے کشتی کو اٹھایا، آج کے دن بھی وہ پانی ہمیں اسی طرح ہی بچاتا ہے. اور وہ کون سا پانی ہے بھائی؟ یعنی بیپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے. یعنی کیا؟ یعنی بیپتسمہ. سارے کو بپتسمہ. کیا؟ بپتسمہ. اس لیے بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے. بپتسمہ لینا ایسے ہی ہے جیسے نوح کے بیٹے بیٹیاں اور نوح جو ہے کشتی میں داخل ہوا. اگر آپ بپتسم نہیں لیتے، بپتسمہ نہیں لیتے، تو آپ کے لیے ہوا میں اڑنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک رول اور ریگولیشن بنے ہوئے ہیں. خدا نے ایک رول بنا دیا تھا کہ جو کشتی میں جائے گا وہی بچے گا. اب بھی یہ رول ہے، کہتا ہے جیسے پانی نے ان کو اس وقت بچایا تھا، اب آپ کو کون بچاتا ہے؟
पढ़े बपतिस्मा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है अब तुम्हें बचाता है हुण किहड़ी चीज बचा दी उदों किने बचाया पानी ने ते कश्ती ने हुण कौन बचाएगा बपतिस्मा दे खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया खाली पानी हुंदा ते जे कश्ती ना हुंदी ते बच सकदे सन नहीं इसी तरह खाली बपतिस्मा अगर यीशु नहीं है तो फिर भी नहीं बच सकते तो बपतिस्मा कहता है उसके जी उठने पर ईमान रखने के वसीला से अब तुम्हें क्या करता है बचाता है और बपतिस्मे का मतलब क्या है ये कलाम में से आपको बताने लगा हूं उसने क्या लिखा है जी भाई पढ़िए उससे जिस्म की निजासत का दूर हाँ जी करना इस बपतिस्मा लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बदन साफ होते हैं या अपने बदन की सफाई के लिए हम ये करते हैं बल्कि इसका तल्लुक रूह के साथ है इसका तल्लुक आपकी रूहानी जिंदगी के साथ है कहता है इस जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है बपतिस्मे से क्या मुराद है मुराद से मतलब होता है मीनिंग क्या है मतलब क्या है बपतिस्मे का मतलब क्या है खालिस नियत से खुदा का तालिब होना एक मिशन जो निकल के दूसरी मिशन से पढ़ना एक गिरजन छाड़ के उधर से हम लोग इतना मतलब कुछ नहीं बपतिस्मे का मतलब ये नहीं है आप किसी भी चर्च में रहकर आप बपतिस्म ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल हालेलुया कहता है खालिस नियत से खुदा का तालिब होना यानी उसे हासिल करना मुराद है हालेलुया तो आज हम इसको यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं आपको घुमा फिर आके मैं बपतिस्मे पे ले आया आगे आने वाले दिनों में हम जरूर इस बपतिस्मे को गहरे तौर पर सीखेंगे हालेलुया तो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है वो याद रखेंगे आपने एक लेवल दूसरे लोगों से आगे हैं लेकिन सिर्फ बपतिस्मा ही लेकर आप बैठे रहें वो भी सही नहीं तीन चीजें बुनियादी हैं मसीहत में तौबा बपतिस्मा और रूह कुदस क्या क्या चीजें तौबा बपतिस्मा और रूह कुदस ये तीन चीजें ये किसी मिशन की नहीं है ये पूरी मसीहत की बात है खुदा यीशु मसीह की ये तालीम है इस बाइबल की तालीम है और हर एक बाइबल में ये बात लिखी हुई हालेलुया मैंने तौबा की थी मैंने बपतिस्मा लिया मैंने रूह कुदस पाया और उस रूह कुदस की कुदरत की वजह से आपके सामने एज अ पास्टर की सेवा से हालेलुया आप जब तौबा करेंगे बपतिस्मा लेंगे रूह कुदस पाएंगे उसके बाद आपकी जिंदगी रूहानी शुरू होगी और फिर ही आप समझ सकेंगे कि किस तरह खुदा यीशु मसीह आएंगे और कैसे हम उठाए जाएंगे हालेलुया खुदा यीशु मसीह पहली दफा कब आए चरनी में पैदा होकर आए क्या करने कहीं गुनाहों से निजात देने गुनाहों से निजात देने और अब दूसरी दफा कब किस लिए आ रहे हैं निजात याफ्ता लोगों को बपतिस्मा याफ्ता लोगों को लेने के लिए तौबा याफ्ता लोगों को लेने के लिए रूह कुदस पाए हुए लोगों को लेने के लिए और उसके बाद फिर तीसरी दफा आएंगे और फिर वो अदालत करेंगे ठीक है तो कितनी आमदें हो गई तीन पहली हो गई दूसरी होने वाली है आप लोगों को या मुझे जो तैयारी करवाई गई है वो दूसरी आमद की करवाई जा रही है अब जब तीसरी आमद की बात होगी तो वो उस वक्त तक खुदा हमें रखेगा हम पहले उससे पहले चले जाएं वो मुसीबत के दौर के लोगों के लिए होगा उस वक्त आप ऐसे इबादत नहीं कर सकेंगे इस तरह की खुली आम कुछ नहीं होगा खुदा आपको अगर तौबा करनी होगी अगर बपतिस्म लेना होगा या आपको खुदा की तरफ जाना होगा तो वो बोलेंगे इसका सर काट दो हम नहीं क्या जाना ना तेरे मथे ते पिछले दिन फिर ना तौबा करो लेकिन वो तो रखी जाएगी तू अगर तौबा करनी है तो ठीक है तेरा सर भी ला दिया जाएगा तो थोड़े जे लोग होंगे ਜਿਹੜੇ तौबा करनगे ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ हालेलुया आया अपनी और सोचें अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है तो वेल एंड गुड खुदावंद आपको बरकत देगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बपतिस्मा लेकर चर्च ना आए आप कलाम ना पढ़ें आप दुआया मीटिंग में ना आए आपको आगे बढ़ना है और अगला स्टेप रूह कुदस है ये स्टेप बाय स्टेप है बिल्कुल जिस तरह बच्चा एक जब शुरू में उसको स्कूल में डाला जाता है तो वो क्लास बाय क्लास पढ़ता रहता है एक वक्त आता है वो मैट्रिक कर लेता है इसी तरह सबसे पहले आपकी जिंदगी शुरू ही उस दिन होगी जिस दिन आप तौबा करेंगे शुरू ही उस दिन होगी जिस तरह आप बपतिस्मा लेंगे शुरू ही उस दिन होगी जिस दिन आप रूह कुदस पाएंगे जीसस हालेलुया खुदावंद तेरा अगर कोई बीमार है दुआ करवाना चाहता है तो अपने कदमों पर दुआ करेंगे प्लीज